Okay. So today we are going to learn about the hypothalamus, its anatomy, and what is the function of hypothalamus basically. That we will learn. So आप लोगों ने नाम सुना होगा hypothalamus का? Have you heard hypothalamus? No. आपके पास hypothalamus है या नहीं? Yes sir, है sir. So hypothalamus is basically present inside the brain. You can say that the hypothalamus is part of midbrain or forebrain. Actually, the position of hypothalamus is in the midbrain. So I'll tell you in detail where it is located actually and the anatomy of this organ. Basically, you cannot say this as an organ. Okay, this hypothalamus is brain is the organ, but hypothalamus is a special structure present inside the brain. Okay, so as you know already, at the core of any well-oiled machine there is a BG engine that keeps it going. कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका बॉडी एक मशीन है और अच्छा से ल्यूब्रिकेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझ लीजिए, ब्रेन को समझ लीजिए, ब्रेन इज ए मशीन, वेल आइल्ड मशीन है, बट इसका इंजन जो है देयर इज ए बीजी इंजन दैट कीप्स इट गोइंग. सो हाइपोथैलेमस इज द सेंटर. ओके, क्योंकि इसका लोकेशन भी ब्रेन के बीच में है, इट इज वेल कनेक्टेड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सो this is at the center of a plethora of physiological processes. ठीक है, कौन कौन सा physiological processes में ये involved है? बहुत सारे physiological processes में involved है. Various types of physiological process that we will come across, और हम लोग अभी सीखेंगे बाद में कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. आप लोग मोटा मोटी जानते होंगे कि थर्मो रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व, ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व है, एंड हार्मोनल रेगुलेशन में भी हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व बिकॉज द सिक्रीशंस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज regulating the secretions from the pituitary. So apart from this these three are the main functions: thermoregulation, osmoregulation, hormonal regulation. Apart from these three, there are many other physiological processes in which hypothalamus is taking its central role. So it also works, क्योंकि देखिए hormonal regulation है, so it works closely with pituitary gland to modulate endocrine activity. Okay, based on body's physiological demands. So gonads जो है उस gonads का hormone का secretion जैसा रहेगा, because that will affect the secretion from the hypothalamus gland also. Okay, suppose estrogen, progesterone level, testosterone level, all these hormonal levels, sometimes they are up, sometimes they are down. So under those conditions the hypothalamus behaves differently. मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को तक? Yes sir, yes. Okay. So हम लोग देखते हैं पहले, we will examine gross anatomical organization of the hypothalamus. Vascular supply of the hypothalamus हम नहीं देखेंगे, इसको हटा देते हैं, पूरा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा. हम लोग देख लेते हैं anatomical organization उसका. Additionally we will look at key anatomical relationship to other structures that we will see, some associated neuronal pathways and the functions of different nuclei in the hypothalamus. This also we will see, because there are various paths. Pathway नहीं कर सकते, pathway कहोगे तो metabolic pathway का इस तरह से आपको लगेगा कि कोई biochemical pathway है. Here the pathway means a track, and that track is basically unmyelinated neurons, bundle of neurons, unmyelinated neurons का bundle है. ठीक है, तो hypothalamus basically is consisting of, and this is not a single organ or single structure.
there are many centers, many different nucleus are present in the hypothalamus. Okay, Nazia has come in between. Nazia include नहीं थी ग्रुप में, चलो नाजिया को मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये ग्रुप में नहीं थी. Others I'll not take. यस सर, इसको लिंक मैंने ही भेजा था. तो इसको कल क्यों नहीं ऐड किए ग्रुप में? एडमिन जो होगा वही ऐड करेगा ना सर. ओके ठीक है, अभी ग्रुप में एडेड नहीं है. नो सर. I'll add her after the class. Okay. ओके. Nazia has come. नहीं आई अभी तक. Okay, anyway, recorded देख लेंगे, class restart class. So we will evaluate the. तो कल मुझे बताना चाहिए था सर. Everybody has not been included it from my class. मैं कितना ध्यान रखूंगा सब कुछ. Anyway. सर पता नहीं. ओके चलो, क्लास पर ध्यान दीजिए. सो हाइपोथैलेमस जब हम कहते हैं तो बेसिकली टर्म पर आप ध्यान दीजिए. हाइपो मीन्स हाइपो टर्म कब लगा जाता है? जब कोई चीज कम हो. ठीक है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड का एक्टिविटी कम हो गया, तो ये हाइपोथैलेमस. यहां पर हाइपो का मतलब है बीनीथ, नीचे. थैलेमस के नीचे, थैलेमस भी एक स्ट्रक्चर है. थैलेमस के नीचे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोथैलेमस. Okay, and this hypothalamus consists of many different nuclei. What are these nuclei? सेल का न्यूक्लियस मत समझना, ठीक है, जिसमें डीएनए होता है. न्यूक्लियाई, here the nuclei means the center where there is density of neurons, special type of cells, neurons, and those special neurons are involved in special functions which is associated with the hypothalamus. So there are many different nuclei in this region. So basically you will see preoptic nuclei are there, paraventricle nuclei. ये पिक्चर, ये टेबल क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? Yes sir. यस सर, दिख रहा है. प्री-ऑप्ट, ये सब याद करना पड़ेगा आपको. ओके, रट लेना. प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, पैरावेंट्रिकल. अभी हम आपको सबका पोजीशन दिखा देंगे, आप देख लो, पहले जान लो. प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आर देयर, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एंटीरियर, डोर्सोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, लैटरल, आर्कुएट, मैमिलरी एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियाई. These are the nuclei, and all these nuclei consist this region, and this region where the hypothalamus is located, and this all nuclei collected called together hypothalamus. Hypothalamus region, hypothalamic region. ओके, रिलेशंस. ये हो गया आपका चौहद्दी इसका. अगर आप इसको देखो तो नोट करते हैं. देखो एंटीरियर, अगर देखो हाइपोथैलेमस अगर आपका बीच में है, सपोज दिस इज, ये रेड बिंदु दिख रहा है आपको, मान लो ये हाइपोथैलेमिक रीजन है. इज इट विजिबल टू यू? थोड़ा बड़ा कर, क्यों हाइपोथैलेमस छोटा होता है इसलिए मैंने छोटा बनाया. मान लो ये हाइपोथैलेमिक रीजन है. ओके, इज इट विजिबल? यस और नो, जल्दी बोलते जाओ. यस सर, यस सर. हाँ, एंटीरियर. अब देखिए इसका चौहद्दी क्या है हाइपोथैलेमस का. एंटीरियर में क्या है? एंटीरियर मतलब दिस साइड, एंड दिस इज पोस्टीरियर. और ये हो गया आपका इंफीरियर साइड, एंड दिस इज सुपीरियर साइड. तो एंटीरियर में क्या है? एंटीरियर कोमिसर. कोमिसर किसको कहते हैं? ब्रेन में इस तरह का आप देखोगे, there are gyrus and commissars present. So anterior to this hypothalamus there is a presence of anterior commissar. AC याद रखना, AC. गर्मी में AC का इस्तेमाल करते हो.
AC मतलब अभी आप याद रखो एंटीरियर कमीसर, ओके। लैमिना टर्मिनलिस, सिर्फ एंटीरियर कमीसर ही नहीं है, लैमिना टर्मिनलिस भी है, टर्मिनलिस भी है। क्योंकि एनाटॉमी आपको जब तक ऑर्गन को 3 डायमेंशनली आप नहीं देखोगे तो अच्छे से आपको कैच करना मुश्किल होगा। तो आप क्या करोगे, अभी फिलहाल ब्रेन तो आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको रट लेना। एंटीरियर में क्या क्या है, एंटीरियर में है AC LT, लैमिना टर्मिनलिस। फिर क्या है, सब कोलेसल एरिया, सब कोलोसल एरिया। ऐसे एग्जाम में मत लिखना AC LT, ऐसे काट देगा एग्जामिनर, समझ कुछ नहीं देगा नंबर। ये याद करने के लिए हम फॉर्मूला बता रहे हैं। सब कोलोसल एरिया विथ इट्स गायरस, तो इसमें गायरस है। फिर इसमें डिप्रेशन, ब्रेन में डिप्रेशन। तो 3 चीज है इसका, एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड में क्या है, मैमिलरी बॉडी। पोस्टीरियर साइड में है मैमिलरी मैमिलरी बॉडी। अब पोस्टीरियर साइड मैमिलरी बॉडी। फिर है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ठीक है, और सेरिब्रल पिडंकल, ठीक है। तो ये लिख देना आप, इसको पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस को भूल जाओ तो आप ये लिख दो सेरिब्रल पिडंकल, CP। पोस्टीरियर साइड में सेरिब्रल पिडंकल है। सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है अंदर में। आपको हम बताएंगे अभी, ब्रेन के अंदर ऊपर में तो गायरस एंड कमीशंस, डिप्रेशंस एंड ग्रुप्स आर देयर, एंड इनसाइड द ब्रेन you will find cavities, ventricles, tract, okay, and aqueduct अगर है तो that means this is the channel। इसमें नर्व नहीं है, न्यूरॉन्स नहीं है, देयर एक रास्ता है, देयर इज ए चैनल, फ्लूइड फील्ड रास्ता है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस नाम दिया गया इसको, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस कैस। ये 3 चीज याद रखो, MBCP कैस, AC LT ऐसे, एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ये चौहद्दी बता रहे हैं आपको हाइपोथैलेमस का। फिर इंफीरियर में क्या, यानी नीचे, सुप्रा ऑप्टिक रिसेस एंड क्रेस्ट, लिखोगे सुप्रा ऑप्टिक क्रेस्ट, ठीक है, SC। द पिट्यूटरी स्टॉक एंड ग्लैंड, ये तो आपको पता ही है, पिट्यूटरी स्टॉक एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। माय माउस इज नॉट ओके, इसका बैटरी खत्म हो गया है लगता है, लोग समझते जाओ। पिट्यूटरी ग्लैंड, वन से माउस, अच्छा PG लिखो। द ट्यूबर सिनेरियम, TC, ये याद रखना, SC TC PG नीचे में ट्यूबर सिनेरियम, और ऊपर में क्या है, हाइपोथैलेमिक सल्कस। इसी से पहचान होती है हाइपोथैलेमस रीजन। ब्रेन का जब सर्जरी किया जाता है या एनाटॉमी या डाइसेक्शन, तो पहले हाइपोथैलेमिक सल्कस को ढूंढा जाता है, हाइपोथैलेमिक सल्कस। ये क्या होता है हाइपोथैलेमिक सल्कस, ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर है, इस तरह से है ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, इसके बीच में देयर इज ए डिप्रेशन, and in this depression
यहाँ पर वेंट्रिकल्स हैं, देयर आर वेंट्रिकल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक सल्कस। ठीक है, तो सुपीरियर में है हाइपोथैलेमिक सल्कस, और हाइपोथैलेमिक सल्कस के ऊपर है आपका थैलेमस और कोरोइड प्लेक्सस of the third ventricle and fornix, an important area। fornix थोड़ा एंटीरियर में होता है, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर में फॉर्निक्स है। ओके, तो दिस इज द चौहद्दी ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हम आपको फिगर में भी दिखाएंगे आगे, डोंट वरी। हाँ हेलो, 1 सेकेंड। हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एनीवे देखो, तो फॉर्निक्स होता है, फिर आगे हम आपको पिक्चर में दिखाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये इतना आपको ओवरव्यू दिए, फिर इसको क्लियर करना पड़ेगा ना। नोटेड, सॉरी। फिर ब्लड सप्लाई। अब देखिए, ब्लड सप्लाई हम लोग नहीं देखेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेज और सर्कुलर विलेज इसका क्या है। फिर न्यूरो एंडोक्राइन पाथवेज। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में देयर आर पाथवेज, जिससे उसका जो हाइपोथैलेमस से सिग्नल है दैट इज गेटिंग कंडक्टेड। सो देयर आर 2 मेजर पाथवेज, 2 मेन पाथवे है। एक का नाम है सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफिशियल एंड द सेकेंड वन इज मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। ये हम दिखाएंगे आपको। फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीडायरी, ये सब जानते हैं आप लोग। थर्मो रेगुलेशन में है, रेगुलेशन ऑफ फीडिंग, इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज, ये सब फंक्शन है इसका। फिर कोई आ गया, 1 सेकेंड।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. So here you can see these two green areas. Can you see this green area in this figure? Okay, focus on this. So this green area is hypothalamus. So you can notice here there are many centers, many nuclei are there in this region. This is hypothalamus. This green area is hypothalamus. Okay, below this is the peduncle of pituitary, stalk कह सकते हो आप, and this is pituitary gland. This is pituitary gland. This green area is hypothalamus. ओके, एंड ये जो लाइन दिख रहा है ब्लैक वाला सब, ये ट्रैक है या पाथवेज यू कैन से. ओके, और ये जो है आपका ऊपर में, दिस इज द थैलमस. दिस इज थैलमस. ओके, थैलमस, एंड below thalamus here there is a present of hypothalamic fissure or sulcus you can say. So this is the hypothalamus, and this red one is, this is the ये parrot green color जो है ये mammillary complex है, mammillary complex या mammillary body कर सकते हो उसको, ठीक है. and this green red one is red nucleus. तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. red nucleus is actually considered to be vestigial in vertebrates, not vertebrates. It is functional in other vertebrates, but vestigial in primates. We are primates, so but still in adult primates it is considered as vestigial. But जो छोटे बच्चे होते हैं, चूंकि आप लोग को इवोल्यूशन नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 4 पैरों पर चलते थे प्राइमेट्स, उसके बाद प्राइमेट्स डेवलप्ड बाइपेडलिज्म. होमो एरगेस्टर जो था कंप्लीटली बाइपेडल था, फिर होमो एरगेस्टर के बाद होमो इरेक्टस एंड देन होमो सेपियंस आए. तो फंक्शन ऑफ दिस रेड न्यूक्लियस वाज लॉस्ट इन एडल्ट, बट स्टिल इन babies when they crawl on four limbs, तो हाथ 2 पैर से बच्चा चलता है ना घुड़क घुड़क के, तो यह रेड न्यूक्लियस, this pinkish color body is involved in that. So this is functional in babies but not functional in adults. So because of this we have developed, because of this there is क्योंकि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो इसको फोकस मत करना. रेड जैसा दिख रहा था आपको तो आप सोचोगे ये क्या है, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस. इवन दिस मैमेलरी बॉडी इज नॉट पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस. दिस ग्रीन एरिया इज हाइपोथैलेमस. ओके, सो दिस इज आउटसाइड द हाइपोथैलेमस. सो व्हाट यू कैन सी हियर इज, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो इतना थके मांदे क्यों दिख रहे हो उसको? नाजिया, सुरजिया, पढ़ाने में मेरे को भी बोर हो जाता है अगर स्टूडेंट थका मांदा रहता है. कोई कुछ बोलते ही नहीं हो, कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हो. एनीवे, चलो ऐसा हो. सी, तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन समझने से पहले आपको वेंट्रिकल समझना होगा. दीज आर द लैटरल वेंट्रिकल्स. दिस इज एंटीरियर व्यू, ऊपर से देखोगे तो लैटरल वेंट्रिकल है, एंड देयर इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन यहाँ पर, ठीक है. इस फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो. फोरामेन ऑफ मुनरो भी कहा जाता है इसको. और फिर यहाँ पर देयर इज अ थर्ड वेंट्रिकल, एंड दिस इज सेरिब्रल एक्विडक्ट, and this is fourth ventricle, and this cerebral canal continues in spinal cord. तो हाइपोथैलेमस जो है यहीं पर है बीच में, ठीक है. इसके नीचे लैटरल वॉल ऑफ द, देखो क्या लिखा है, द लेफ्ट एंड राइट लैटरल वॉल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल
थर्ड वेंट्रिकल हो गया ये वाला, और इसी का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी का लेटरल दिख रहा वाल, चूंकि हेमिस्फेयर जो है ब्रेन हेमिस्फेयर दो तरफ है, तो मेरा माउस भी हिल रहा है, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इसका लेटरल वाल यानी इधर का और इधर का, दोनों लेटरल वाल में these nuclei are located. Okay, so left and right lateral walls of the third ventricle are divided by an antero-posterior depression known as hypothalamic sulcus. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इज डिवाइडेड बाय एंटीरियो पोस्टीरियरली, यानी इस तरह, इधर एंटीरियर और इधर पोस्टीरियर, डिवाइड एंटीरियो पोस्टीरियरली बाय द डिप्रेशन, क्योंकि ये दोनों आधा आधा ब्रेन है, बीच में डिप्रेशन है, एंड दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक सल्कस, एंड इट रन्स फ्रॉम एंटीरियर टिप ऑफ द फॉर्निक्स, फॉर्निक्स आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है, तो ये ऊपर से दिख रहे हो तो इसमें फॉर्निक्स इस फिगर में नहीं दिखेगा, फॉर्निक्स और एंटीरियर टिप ऑफ द फॉर्निक्स, तो वो कहां से शुरू होता है, फिर आपका फोरामेन ऑफ मुनरो से, फोरामेन ऑफ मुनरो इसी को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन को, दिस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन इस पिक्चर में आपको दिखेगा, यानी लेटरल व्यू में, आपको लेटरल व्यू में लेटरल वेंट्रिकल से जब थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड है, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, मैं माउस छोड़ ही देता हूं, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, एंड ये एंटीरियर व्यू में थर्ड वेंट्रिकल यहाँ है, लेटरल व्यू में थर्ड वेंट्रिकल यहाँ है, लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पर है, इस लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में ये जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मुनरो, तो ये जो है फोरामेन ऑफ मुनरो जो है वो है हाइपोथैलेमस के ऊपर में, देखो लिखा हुआ है, इट रन्स फ्रॉम द एंटीरियर टिप ऑफ द फॉर्निक्स, फॉर्निक्स आपको दिखाना पड़ेगा, फॉर्निक्स इज हियर, इस पिक्चर में भी नहीं दिखेगा फॉर्निक्स, फॉर्निक्स, कैन यू सी दिस, फॉर्निक्स इज हियर, दिस इज फॉर्निक्स, ठीक है, दिस रीजन इज फॉर्निक्स, तो यहां से शुरू होके फॉर्निक्स, फॉर्निक्स से शुरू हुआ एंटीरियर टिप्स एंटीरियर में, एंड बिटवीन द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मुनरो, फोरामेन ऑफ द मुनरो चूंकि दोनों साइड होगा, दिस ऑल्सो इज फोरामेन ऑफ मुनरो और यहाँ पर भी फोरामेन ऑफ मुनरो, तो दोनों साइड के फोरामेन ऑफ मुनरो के बीच में है, और यह फोरामेन ऑफ मुनरो जो है ऊपर में है, एंड द एंटीरियर कमीसर इंफीरियर, और उसके नीचे यानी एंटीरियर कमीसर एसी और फोरामेन ऑफ मुनरो ऊपर, दोनों के बीच में आपका हाइपोथैलेमस है। टू द पोस्टीरियर कमीसर सुपीरियर टू द बिगिनिंग ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ओके, अभी आपको हम चौहद्दी बताए थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पर रिलेशन में, बस इतना ही समझ लो, दिस लाइन इज कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो उसको आप समझ लेना, ठीक है ना, अभी आप डायग्राम से बताया था ना चौहद्दी, ऊपर में ये नीचे में, टू द पोस्टीरियर कमीसर सुपीरियर टू द बिगिनिंग ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस, तो नीचे में है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, कौन है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, दिस वन, दिस इज द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, पीछे की तरफ, this depression separates thalamus superiorly from the hypothalamus inferiorly, ऊपर में थैलेमस है, नीचे में हाइपोथैलेमस। अब देखिए, the hypothalamus is composed mainly of different nuclei, ये तो हम बताए, ये फिगर भी आप समझ लो, दिख रहा है ये फिगर,
Yes, sir. ओके, तो यू कैन सी एक बोन के पॉकेट में, इस बोन का नाम है स्फिनोइड बोन, ठीक है, या सेला टर्सिका भी बोलते हैं, स्फिनोइड बोन। समझ लो स्फिनोइड बोन है इसका पॉकेट यहाँ पर, ठीक है। इस स्फिनोइड बोन के पॉकेट में क्या लोकेटेड है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का फिर क्या है ऊपर, पिडंकल। इनफंडिबुलम, पिडंकल तो प्लांट के केस में कहते हैं, इनफंडिबुलम है, ठीक है। ये इनफंडिबुलम के ऊपर में दिस रीजन इज हाइपोथैलेमस। हियर यू कैन सी, ये ट्रायंगुलर टाइप का ये डायग्रामेटिक पिक्चर है, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज ऑप्टिक चाइजम। इसके रेफरेंस में बहुत सारा टर्म आएगा ऑप्टिक, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के ऊपर में दिस वन इज थैलेमस, ओके, एंड दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम ऊपर में, ओके। सो और ये हो गया बोन, स्फिनोइड बोन। अब ये फिगर को मैं आपको एक्सप्लेन कर दी। दिस फिगर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिख रहा है आपको, यस और नो, दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर दिख रहा है। See, these are the lateral ventricles. यही बीच में हाइपोथैलेमस का सल्कस है। इस लैटरल वेंट्रिकल के इस तरफ जो मुड़ा हुआ है उसको एंटीरियर हॉर्न बोले। इसमें मेनली आप याद रखो ये देयर आर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, यानी फोरामेन ऑफ मुनरो कनेक्ट्स लेफ्ट वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पर ऊपर से, और यहाँ पर लेटरल व्यू में थर्ड वेंट्रिकल जो है देखो ये पतला जैसा है, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। और दूसरा आपको जो कनेक्शन है याद रखना चाहिए वो सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट है, एंड दिस इज दिस वन connects the third and fourth ventricle, okay, so this is the fourth aperture of the fourth ventricle and this is the third ventricle, okay, this is the fourth ventricle connected by cerebral aqueduct. अब आप देखिए क्या है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज कंपोज्ड मेनली ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, many different centers, and these nuclei are discrete mass of gray matter in central nervous system that synthesize different hormones in response to physiological changes. तो बेसिकली ये कई सारे न्यूक्लियाई हैं, इसको आप 4 रीजन में बांटा गया है इन न्यूक्लियाइज को, जैसे कि फर्स्ट रीजन इज प्री ऑप्टिक रीजन। इस प्री ऑप्टिक रीजन में है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। अभी पहले हम चारों का नाम बता देते हैं फिर आपको न्यूक्लियस का पोजीशन दिखाएंगे। प्री ऑप्टिक रीजन में प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये हाइपोथैलेमस का रीजन समझ है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में क्या है, अभी देखिए क्लास 1 मिनट के अंदर में बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। इन द सुप्रा ऑप्टिक रीजन देयर